बाकी सारे कन्वेंशंस को साइड में छोड़ देते हैं, सीबीडी पर कंसंट्रेट करते हैं। 1992 अर्थ समिट, वन ऑफ द थ्री टेल एंडर सीबीडी। सीबीडी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1993। सीबीडी वाज सक्सेसफुल इन मेन स्ट्रीमिंग। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी वगैरह के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही आपको एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। So we are just willing to organize our information to make it manageable. CBD, the Convention on Biological Diversity, how has evolved to be the umbrella convention? Umbrella term I use to denote comprehensive most, because it very successfully, extremely successfully mainstreamed biodiversity. When I was asking us to understand the biotic, non-feeding interactive links as neutralism, उस समय भी हमने ये बात करी थी कि इफ वी आर ऑन फेस वैल्यू न्यूट्रल टू ईच अदर्स एग्जिस्टेंस, हाउ इट कैन बी एन इंटरएक्टिव लिंक. It is an interactive link even between us, though on face value we are very neutral to each other's existence, because ultimately we are part and parcel of a system and both of us are playing some role. We have our address and our profession, fit in the technical term, niche. And by default, my existence is influencing your existence also. Let it be that it is not evident on the face value. Conferences of parties of CBD have such successfully mainstreamed biodiversity. How? By mainstreaming ecosystem services. Deforestation को close down करा था इस term को लिखकर. What is ecosystem services? Ecosystem services is all the services that ecology, biodiversity and ecosystem provides us. जिसको हम हमेशा से सोचते हैं by default है, या हम सोचते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है. There are 4 ecosystem services that has been outlined by CBD. एक को बोलते हैं provisioning services, एक को बोलते हैं regulating services, एक को बोलते हैं supporting services और एक को बोलते हैं cultural services. कम से कम 3 के out of these 4 have direct indirect monetary value with us. Mainstreaming biodiversity by recognizing ecosystem services was such successfully done by CBD that by conference of party 9, biennial hai, by conference of party 9, I mean 2008, we had maximum of the parties to this convention, 190 out of 196 had national strategic biodiversity action plan. आपको बात समझ में आ रही है? India established the biodiversity authority in 2002. So we were one of the early responders. So when I try to take national strategic biodiversity action plan by the parties to the convention, क्योंकि भाई कोई ग्लोबल कन्वेंशन इस पे काम नहीं कर पाएगा जब तक उसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेशन ना हो. Ecosystem services successfully mainstreamed biodiversity in the mindset of an individual, community at the grassroots level, administrators, planners in decentralized norm. ये बहुत important introductory step है for CBD. We are beginning there. Then comes POW. POW की शुरुआत करी गई है 2004 से. जैसे हम पीओडब्ल्यू की बात करते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे राडार पर आ जाते. तो प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब क्या? प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम ज्यादा पॉपुलरली उसको ऐसे बोलते हैं, नेशनल पार्क्स. तो क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को हमने ग्लोबल रिकॉग्निशन 2004 से देना शुरू करा था? ना. यूनेस्को मार्क्ड अप द फॉर्मल रिकॉग्निशन टू प्रोटेक्टेड एरियाज राइट फ्रॉम 1970s. 1975 MAB, Man and Biosphere, and 1977 World Heritage Convention sites, natural sites we are talking about. UNESCO started giving us recognition of protected area formally from 70s itself. और protected areas का genesis तो आप बहुत older time से judge कर सकते हो. In our country also we can easily trace the protected area establishment from the beginning of 20th century. Corbett National Park for example. So we very clearly can see कि protected areas का genesis तो बहुत older है. तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनना. Protected areas were not initiated by CBD. What CBD said? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 तरीके होते हैं. एक को बोलते हैं इनसेटिव कंजर्वेशन, एक को बोलते हैं एक्सेटिव कंजर्वेशन. इनसेटिव कंजर्वेशन जहां पर वो है, एकदम लेमैन्स पर्सपेक्टिव में समझो, लिखने में समय नहीं लगेगा.
सपोजिटली आई एम अ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, 25वें स्टोरी पर टंगे हुए हैं, छोटी सी बालकनी है, 2 गमले लगा रखे हैं. I am doing my bit as an individual who can somewhere generate green around. This is also my effort. इसको compare करें. There is one natural biodiversity area in a given location. वहां पर trees भी हैं, other varieties of specimens भी हैं. उसको demarcate कर देना, उसमें थोड़ा सा human regulation impose करना, which among the two will be more far reaching towards our attempt to conserve biodiversity? पहला कि दूसरा? Second is example of in situ conservation. Protected areas represents in situ conservation. What are protected areas? Those natural biodiversity hotspots which have got very extreme endemism or vulnerability. आप उसको बस demarcate ही तो करते हो. When I take the references of national parks, permissible human activities are there. Biospheric reserve, permissible human activities are there. Wildlife refuge में human activities को आप largely prohibit करते हो. So you have to just regulate it. तो ये जो restrictive या recognition जिसका शुरुआत यूनेस्को ने formally किया, उसको CBD ने कैसे mold किया? ध्यान से सुनेंगे. Program of work was roping in biodiversity conservation, in situ conservation, protected area to the CBD's radar. Has CBD just given recognition to protected area and its functioning? नहीं. Grade करा protected area को, सोच कर देखना, अपनी knowledge of biomes को apply करना. Is the challenge of biodiversity faced by aquatic biome will be same as faced by forest biome, will be same as faced by desert biome, will be same as faced by any other habitat that you can say mountain, island, anything? नहीं, सबका एकदम अलग अलग challenges होगा. POWs tends to customize it. Program of work for island biodiversity, program of work for mountain biodiversity, program of work for island बता दिया, aquatic biodiversity, forest biodiversity and grassland biodiversity. और जो एकदम सुपरलेटिव है वो है TEK. सुना है इसके बारे में? ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज. फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेव ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स. माने जनरेशन से they are dependent on forest natural domain for their cent% survival requirement, and they are surviving apart from managing the natural assets excellently. उनके पास ज्यादा practical knowledge है than what we are sitting and planning in air conditioned office. For the first time there was POW incorporated for traditional ecological knowledge, that is giving practicality of the traditional knowledge towards biodiversity conservation. ये सारे efforts हैं जो CBD को mainstream करने में मदद करते हैं, and that is the reason it is the umbrella convention. कितने details में लिखोगे ये तो question की demand पर depend करेगा. एक ecosystem services पर अलग से भी एक question आप encounter कर सकते हो. Traditional ecological knowledge पर आप एक अलग से question encounter कर सकते हैं. But if you are writing answer on CBD, you must add 1 and 2. 3, 4, 5 तो सभी लिखते हैं. 1 and 2 is going to make and break your answer. We are detailing it, you will be more comfortable. We are beginning with CBD. Introduction हो गया, 5 point लिख लिए, पांचों को detail कर रहे हैं. Beginning with ecosystem service. Yes, virtual class. Regulating services when ecosystem biodiversity helps us or protects us from. अगर mangroves हो तो tropical cyclone का landfall रुकेगा, क्योंकि मैनग्रोव स्पीड ब्रेकर का काम करेगी. जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लैंड की तरफ बढ़ रही है, मैनग्रोव्स का नॉर्मल हाइट जो है वो 20-25 मीटर के करीब होता है. अगर आप उसके हिसाब से एक हाई वेलोसिटी विंड सर्जिंग टुवर्ड्स द शोर लाइन, स्पीड ब्रेकर आएगा तो अपने आप उसकी वेलोसिटी रुकेगी. सी सर्जेस के लिए आप यू एक्ट एज अ ब्रेक. इट विल रिड्यूस द फ्लडिंग पॉसिबिलिटी इन कोस्टल एरिया. स्लोपी एरियाज में अगर वेजिटेटिव बैरियर रहेगा तो डेफिनेटली लैंडस्लाइड को आप रोकेंगे. एंड एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग बायोटिक एम्बैंकमेंट. जो स्नो एवलांचेस पोटेंशियल जोन होते हैं वो तो हैबिटेबल होते नहीं, लेकिन जहां पर हैबिटेबिलिटी शुरू हो जाए, अगर वहां पर थिक नो से ग्रीन कवर बना ले
तो जो स्नो एवलांच का स्नोबॉल इफेक्ट आता है, कम से कम आप उसको ब्रेक तो दे ही सकते हो, इफ नॉट कंप्लीटली कंट्रोल इट। क्योंकि स्नो एवलांच का जो डायरेक्ट लॉस है दैट विल बी फॉर द ट्रेकर्स और फॉर द फोर्सेस, द पीपल डिप्लॉयड देयर फोर्टिफाइंग द बॉर्डर्स। जो रियल ह्यूमन हैबिटेशन है वो तो लो स्लोपी एरिया पर है। अगर आप स्नो एवलांच को कहीं बैरियर के साथ ही रोक दोगे तो उसका हजार्ड अपने आप ही कम हो गया। प्लस प्लांट्स डू एक्ट एज एयर प्यूरिफायर्स विद कार्बन सिंक। ऑटोमेटिकली जैसे ही कार्बन सिंक का मॉनिटरी डायमेंशन इज एडेड नाउ, वी आर अवेयर ऑफ CER एंड कार्बन ट्रेडिंग। अब लिखो नंबर 3, ये है कल्चरल सर्विसेज। के लिए रुको समझो फिर लास्ट सर्विस लिख पाते हैं। कल्चरल सर्विसेज को हमने शुरुआत में डाला ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, चलो इसी को इसी से जज करते हैं। बट अगर ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड दैट वी कैन कंसिडर टू बी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर? बहुत ही हम्बल असेसमेंट भी लोगे तो भी 5-6% से ज्यादा पॉपुलेशन की आप बात नहीं कर रहे हो। सो हाउ इट कैन बी दैट इकोसिस्टम सर्विस विद विच वी शुड बी कंसर्न? इसलिए हमने ऐड करा सेकंड पॉइंट, कल्चरल सर्विसेज इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, क्योंकि उनका 100% कल्चरल एफिलिएशन इकोसिस्टम एंड नेचुरल बायोडाइवर्सिटी से है। कल्चर इज एन ऑल एनकम्पासिंग टर्म। कल्चर का मतलब होता है द फूड आई ईट, द क्लोथ आई वियर, द रिलीजन आई बिलीव, द आइडियोलॉजी, द टेम्परामेंट एज साइंटिफिक फंडामेंटलिस्ट, एवरीथिंग, द इकोनॉमिक एक्टिविटी आई एम एंगेज्ड इन। कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग। कल्चर को सिर्फ वो पूजा और नमाज पढ़ने से एसोसिएट नहीं करना, it relates to everything, it includes the way of life. That is the reason when I talk about cultural services, by default I'm talking about traditional forest dwellers, पर फिर वो इतना strong नहीं लगता। Then we added sacred groves. Traditional forest dwellers have got a very typical practice of demarcating, size differ करता है, certain patches of their forest as sacred, पवित्र, something which is too sacred to be destructed. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि sacred groves में से एक्सट्रैक्शन नहीं होता, लाइक वी डू एक्सट्रैक्ट नट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, बट डी रूटिंग ऑफ प्लांट्स नहीं प्रैक्टिस किया जाता। तो सेक्रेड ग्रूव्स एक्चुअली गिव्स अस द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन अनटच्ड बाय ह्यूमंस, दैट इज फॉर द एक्सीलेंट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कि भाई हाउ वाई आर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस उस पर्टिकुलर हैबिटेट का बायोम अपनी आज की कम्युनिटी लेवल पर पहुंचा है, वेदर आई कैन कॉल इट क्लाइमेक्स कम्युनिटी और नॉट। तो कल्चरल सर्विसेज का एक डायमेंशन आ गया, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, एंड कल्चरल सर्विसेज का तीसरा डायमेंशन, डोंट बी द टिपिकल अर्बन ड्वेलर्स ट्राई टू टेक अडोब टू द नेचर, नेचुरल डोमेन just to rejuvenate ourselves. This is a nature centric tourism and we have got worldwide, it's a $1 billion industry if I have to go with the very basic kind of assessment, where we are talking about nature centric tourism. उसके pros और cons क्या है वो अलग story है, but it is by default having a monetary edge associated with it. I think this is comfortable. Remind करो, ecosystem services, प्रोविजनिंग, डायरेक्ट मॉनेटरी वैल्यू जो हम एसेट्स एक्सट्रैक्ट करते आए हैं इकोसिस्टम से सिंस द बिगिनिंग। रेगुलेटिंग सर्विसेज वेयर इकोसिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिफरेंट पोटेंशियल हजार्ड्स अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग रोल एज एयर प्यूरिफायर एंड कार्बन सिंक। कल्चरल सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। Cultural services also relates to aesthetics, tourism, and thus is involving precisely all population, human population associated with it. Last रह गया, नाम है supporting services. Supporting services is yet to be defined of its monetary value, पर कितना valuable है वो भी समझते हैं। Last लिख लीजिए, supporting services. Do write in bracket because in the beginning you have not written the complete name. NSB APS. National Strategic Biodiversity Action Plan. स्ट्रैटेजिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कस्टमाइज करना पड़ेगा ना। सऊदी अरेबिया का जो स्ट्रैटेजी होगा टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वो इंडोनेशिया के लिए थोड़ी ना काम करेगा, इसलिए स्ट्रैटेजिक बोलते हैं। थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ? इतना डिटेल्स में तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे जब आंसर लिख रहे हो, व्हाट आर वी डूइंग एज ग्लोबल कम्युनिटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बस एक लाइन में मेंशन करना पड़ेगा that CBD
giving recognition to ecosystem services successfully mainstreamed biodiversity. खत्म. आप तब इकोसिस्टम सर्विसेज का डिटेल्स नहीं दोगे. हम लर्न कर रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भाई इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या. अब थोड़ा सा रुको, वन स्टेप बैक को इमेजिन करो. अगर आप आंसर लिख रहे हो अब, what will be the consequences of deforestation and why we should be worried about it? We are losing on ecosystem service. हो गया ना आंसर ऑर्गेनाइज. इसलिए आपको स्टार मार्क स्टेटमेंट लिखवाया था वहां बॉक्स में. अब जब भी आप कोई भी नेचुरल लॉस के बारे में आंसर लिखो, अपने दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा सोचना, क्या मैं इसको इकोसिस्टम के साथ फ्रेम कर सकता हूं या कर सकती हूं, बिकॉज दैट विल गिव यू ऑल डायमेंशन आंसर. उसी में आप सारी चीजें ऐड कर दीजिए. योर आंसर इज इन योर कंट्रोल. आपने सारे डायमेंशन लिख दिए, नहीं तो ऐसे एक एक पॉइंट. आई एम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सॉइल इरोजन, does siltation of rivers and dam. I hope you are getting it. वो दोनों को किस में डाल दोगे? सॉइल इरोजन को रोक रहे हो, सिल्टेशन ऑफ डैम्स को रोक रहे हो, फ्लडिंग को कंट्रोल कर रहे हो, सब किस में चला गया? रेगुलेटिंग सर्विसेज. आराम से हो गया काम. आई थिंक इट इज कम. समझ में आ रहा है? यस. सो इकोसिस्टम सर्विसेज को रिकॉग्निशन देकर सीबीडी ने क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया कि भाई वी नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स इकोसिस्टम even if we don't directly relate to it. We as in typical urban dwellers, affluent people, industrial economy, जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ we can attain in our own place, but ultimately it is coming from ecosystem. So that has been successfully done. अब हम ले रहे हैं स्टेप नंबर 2. इट इज प्रोग्राम ऑफ वर्क. प्रोग्राम ऑफ वर्क को समझाया आपको, इसको 2 डिवाइड्स के साथ जस्टिफाई करेंगे. ठीक है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेप के साथ. स्टेप नंबर 2, POWs, प्रोग्राम ऑफ वर्क्स. दोनों ही पॉइंट एक अलग शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन के पोटेंशियल होल्डर्स हैं. HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी आपसे एक अलग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है. सो यू नेवर नो, इसलिए आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए. अदरवाइज व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट CBD तो आपको इतने डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए. कस्टमाइज, देयर आर 5 POWs and 1 POW is for the first time giving recognition to ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज. अब एकदम रिलैक्स करो, हम रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. यही 2 पॉइंट है जो आपका आंसर राइटिंग टू CBD को मेक या ब्रेक करेगा. बिकॉज आई वेरी सिंसियरली बिलीव कि जो भी CBD के बारे में पढ़ेगा वो हिप्पो के बारे में जरूर वो लिखेगा. नागोया प्रोटोकॉल और कार्टेजना प्रोटोकॉल को छोड़ने वाला नहीं. तो फाइनल 3 पॉइंट्स आई एम नॉट सेइंग आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट आई एम सेइंग दे आर नॉट द ओनली पॉइंट. सिंपल थिंग. Why are we calling CBD the umbrella convention? It is all inclusive. Successfully mainstreamed biodiversity by making us aware कि भाई we cannot survive without ecosystem services. It's high time that we should become sensitive towards ecology and biodiversity. Number 2, giving customized version to in situ conservation. In situ conservation की practical शुरुआत तो 70s में यूनेस्को ने ही कर दी, लेकिन 2004 ऑनवर्ड्स क्या मेजर मॉडिफिकेशन हमने कर दिया. that I cannot take it. Yes, Radhika, you are right. I told you that earlier also. When I take up the reference of POWs, यहाँ पर एक customization है कि भाई हम सबके सर में दर्द हो रहा है, सब लोग एक ही मेडिसिन खा लो, doesn't work. हम सबका अलग point of responding है. तो I need to judge what is the compatibility of the medicine that is going to work for each one of us. That is what it is. अगर मुझे ecosystem services से benefit लेना है, if I have to ensure कि in situ conservation is truly giving me for the purpose for which I have mobilized it, it has to be customized. क्योंकि desert area या island area या mountain area या grassland area या forest area के challenges और उनकी adaptations अलग हैं. We cannot have a simple protected areas हैं भाई हमारे पास, wildlife refuge है, national park है, सबको एक ही point पर judgment में डालो. That is impractical. ये logic है customized POW का. And what makes POW a superlative point? Zoological park जिनको आप zoos बोलते हैं, they are basically related to be the special areas where you put, बहुत आसान सा तरीका है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज और एक्स सेतु जिसमें आपको जूओलॉजिकल पार्क बताया है. आपने किसी एनसीईआरटी में इसको जरूर पढ़ा होगा. आई थिंक इट इज छोटा स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में. व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जूओलॉजिकल पार्क एंड नेशनल पार्क? दैट इन जूओलॉजिकल पार्क्स वाइल्ड लाइफ आर इन केज एंड इन नेशनल पार्क ह्यूमंस आर इन केज व्हेन यू गो एंड विजिट देम एज टूरिस्ट. ये वाला लॉजिक है, तो डिफरेंट है ये. So that difference you need to take into consideration. Zoo, botanical gardens comes in ex situ conservation.
इन सेतु में आपने कस्टमाइज किया, ये सीबीडी का रोल है। और पहली बार ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज या सिंपली इकोलॉजिकल नॉलेज या दी ग्रास रूट ट्रेडिशनल डवेलर्स के नॉलेज को प्रैक्टिकलिटी में रोप इन किया, दैट दे हैव गॉट मोर लॉजिकल, मोर effective knowledge than what we can take up coming from textbooks or other things. And I think it goes very evident. Agar I have been grown up in the agricultural field, seeing my elders performing agriculture, I precisely will be knowing more practicalities of agriculture than an individual who is holding degree in agriculture. TEK ka wo TEK represents that practicality, and that is what is the reference here. I think this is comfortable. अब हम आगे कन्वेंशनल ट्रैक में, जब भी आप किसी भी कन्वेंशन की बात करोगे तो उसके मीटिंग्स और उसके आउटकम के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। आप जरा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कार्टेजना प्रोटोकॉल को साइड में रख रहे हैं अभी। कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज, जैसा आपको पहले बताया, सीबीडी के कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज 2 साल में एक बार हुई है। सो इट वाज इन 2008 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 9। आप हिप्को के बारे में जानते हो, बस एक लाइन लिखवाएंगे। मतलब पिछले 7 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज में वी द पार्टीज टू द कन्वेंशन वर नॉट इवन इन द कंडीशन टू फाइनलाइज कि हम किस वजह से बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट कर रहे हैं। हमें लग गए 8 कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज टू फाइनलाइज दैट हिप्को इज द कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि जब तक आप कॉजेस को आउटलाइन नहीं करोगे, आप मिटिगेशन को क्या प्लान करेंगे। तो why it is important for me to mention this, that CBD recognize habitat destruction, invasive alien specimen pollution, population, climate change and over exploitation as the dimensions causing loss of biodiversity. इसलिए हमें हिप्को को कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। तो what काम we started doing, 2 साल के बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 10, it was held in Nagoya, 2010 की बात कर रहे हैं। Nagoya is a city in Japan, it's a mega city in Japan। ध्यान से सुनते जाना। Nagoya is located in Aichi prefecture, जैसे लखनऊ is located in उत्तर प्रदेश the state। Political subdivision of our country is called state, political subdivision of Japan is called prefecture। Aichi is a prefecture as Uttar Pradesh is a state, Nagoya is a city in Aichi prefecture as Lucknow is a city in Uttar Pradesh। तो नागोया प्रोटोकॉल, Aichi बायोडाइवर्सिटी टारगेट, नाम हो गए आसान। नागोया प्रोटोकॉल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट। हम इतने डिटेल्स में लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो सिंपल वॉलंटरी। नागोया प्रोटोकॉल पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारे राडार पर सीबीडी का। नागोया प्रोटोकॉल 10वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में पार्टीज टू द कन्वेंशन बेसिकली डिसाइडेड कि accessibility of genetic resources, its utilization, and the fair, equitable sharing of benefits arising from its use must be ensured. That will make all the success for CBD. Let us make it legally binding. ध्यान से सुनते जाना। नागोया प्रोटोकॉल का जिस्ट क्या है? That accessibility to the genetic resources to all the stakeholders and fair and equitable benefits sharing among all of them must be ensured. नागोया प्रोटोकॉल को 2010 नागोया में लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल के तौर पर अग्री किया गया। 2 साल के लिए ओपन एंडेड रहा कि पार्टीज टू द कन्वेंशन शुड साइन इट as a legally binding protocol. So for 2 years we were believing कि नागोया प्रोटोकॉल will come out to be a legally binding dimension to CBD, which by default by then was a voluntary convention. ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2 साल के बाद we had conference of party 11 in our country, हैदराबाद। जब 2012 में हैदराबाद pledge announce हुआ, what is हैदराबाद pledge? Normally when I say India ratifies नागोया प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब होता है कि इंडिया एग्री कर रहा है नागोया प्रोटोकॉल को। ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं। 92 पार्टीज टू द कन्वेंशन ओपनड अप फॉर 2 years। नागोया प्रोटोकॉल को 92 पार्टीज ने साइन करा एज लीगली बाइंडिंग। मैक्सिमम ऑफ देम, मोर देन 100 पार्टीज इंक्लूडिंग अस, इंडिया, नेवर साइंड इट। सो मैक्सिमम पार्टीज टू द कन्वेंशन वर नॉट डिनाइंग द वैलिडिटी ऑफ नागोया प्रोटोकॉल बट हैड द रिजर्वेशन कि इसको लीगली बाइंडिंग कैसे करोगे। मान लीजिए नीलगिरीज में कोई एक बहुत हाई वैल्यूड मेडिसिनल प्लांट है,
आपने साइन कर दिया लीगली बाइंडिंग कि भाई जेनेटिक रिसोर्सेस की एक्सेसिबिलिटी सबके पास होनी चाहिए। अगर एक कॉर्पोरेट जायंट वहां के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के इंटरेस्ट को किल करके अपने पावर और रिसोर्सेज लगाकर उसको ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा, तो हाउ द ग्लोबल कम्युनिटी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इंडिया? जब ग्रीन हाउस गैसेस की बात होती है या जब बात होती है वाटर एयर पोल्यूशन की, देन वी कैन स्टिल टॉक अबाउट ग्लोबल सैंक्शंस। इस तरह के सिचुएशन में कैसे वो लीगली बाइंडिंग होगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। So maximum of the parties to the convention were having the reservation that we cannot have provisions of this protocol practically imposed as legally binding. So we ratify it as voluntary protocol, not legal. So Nagoya Protocol exists, but not as what it was proposed as legally binding. It continues to be voluntary. Nagoya Protocol is just one dimension of HE biodiversity target that was also finalized in the same conference of party. HE biodiversity target पहली बार benchmarking किया गया। benchmarking मतलब target set किया गया। It has been eventually pushed. अब तो हमने इसको 2030 तक push कर दिया है। Incompatibility with ecosystem restoration decade that we are on to right now, 2021 से 2030 तक। तो HE biodiversity target के 20 targets हैं। हम आंसर राइटिंग में उनको 5 स्ट्रैटेजिक गोल्स में डिवाइड करते हैं। These 5 goals marked the first time ever CBD setting in benchmarking that we will be conserving biodiversity, mainstreaming biodiversity, or decentralizing, ensuring participation of communities and etc. That is what was done for the first time, mind it, on absolutely voluntary lines. तो ये है मेन ट्रैक ऑफ CBD। जो लास्ट पॉइंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स है। 1999 से शुरू हुई है, 2002 में फाइनल हुआ, 2004 में कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी केम इनटू फोर्स। कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी कैन नॉट बी सिनोनिमस टू CBD. It has been extraordinary meetings centered around LMOs and GMOs, and it establishes AIA and BCH। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया हिप्पो और नागोया प्रोटोकॉल का? फटाफट से लिख रहे हैं, मिनिमल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं। आप थर्ड पॉइंट करके लिखो, हमने आपको पहले इसलिए लिस्ट लिखवा दी ताकि आप ट्रैक लूज नहीं करें। रीड करो। स्ट्रैटेजिक गोल ए, 2 की टर्म हो गए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मेन स्ट्रीम? तो कॉजेज एंड मेन स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, 5 स्ट्रैटेजिक गोल 20 टारगेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जूम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए तो मोस्ट वेलकम टू राइट, पर बहुत ध्यान से पहले समझो। स्ट्रैटेजिक गोल ए, आई होप वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स को भी दिखाई दे रहा है, इंक्लूड्स 4 डिफाइंड टारगेट्स। आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है हमने, मतलब जो 20 टारगेट्स हैं उसमें 4 स्ट्रैटेजिक गोल ए के साथ जा रहे हैं। कौन कौन से? अंडरस्टैंड वैल्यू, मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी, एड्रेस इंसेंटिव्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। अपने आप में सेल्फ स्पीकिंग एक्सप्रेशंस हैं कि आप कोई भी डिनाइल ऑफ यूज नहीं एड्रेस कर रहे, आप सिंपल कह रहे हो सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंटेन कर सके। इज दिस कंफर्टेबल? हमें ये 20 टारगेट की नॉलेज होनी चाहिए सारी। 1 2 3 4 20 तो मेरे ख्याल से हम किसी भी आंसर में लिखेंगे नहीं, लिखेंगे हम 5 ही, बट पता होना चाहिए दैट वी हैव गॉट 20 सब डिवाइड्स टू इट। स्टार मार्क करके लिख लो। Strategic goal A includes 4 demarcated targets changeover. Next bullet point बनाइए और लिखिए strategic goal B, अंडरलाइन कीजिए, डैश डाल के लिखिए। It aims at reducing direct pressure on biodiversity and promoting its sustainable use। पहले में कहा क्या कॉज है और मेन स्ट्रीम करो, दूसरे में क्या कह रहे हैं? प्रेशर रिड्यूस करें और सस्टेनेबल यूज को एनहांस करें। स्टार मार्क करके लिख लो। इंक्लूड 6 टारगेट्स, इंक्लूड्स 6 टारगेट्स। कोई जरूरी नहीं है आप इनको लिखो, पर बहुत ध्यान से देखते जाना। 6 टारगेट्स कहां से शुरू करें? यहां से, नंबर 5 से। डिक्रीजिंग द रेट ऑफ लॉस टू हाफ। नेक्स्ट रह रहा है सस्टेनेबल फिशिंग, प्रेशर रिड्यूस करना है ना, तो सस्टेनेबल फिशरी। उसके बाद आ रहा है मैनेज विद इन द लिमिट। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? मैनेज विद इन द लिमिट, यस और नो? अच्छा, 3 टारगेट इधर दिख गए, 3 इधर दिखेंगे। रिड्यूस पोल्यूशन,
reduce invasive alien specimen and minimize reef loss. I hope you are understanding. Reef loss को minimize करो, overfishing को minimize करो. क्या है? Decrease the pressure on biodiversity. I hope you are understanding it. तो ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 का उतना वैल्यू नहीं है जितना स्ट्रैटेजिक गोल का है. उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर एक दो चीजें लिख सकते हो, जैसे स्ट्रैटेजिक गोल बी टेक्स इनटू अकाउंट reducing the loss of biodiversity by ensuring sustainable fishing, controlling invasive alien specimen as एक दो examples. Are you getting it, class? पहला strategic goal क्या है? Recognize the causes and mainstream biodiversity among governments and society. दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. Strategic goal B क्या है? Reduce the direct pressure on biodiversity and ensure enhanced sustainable use. पहले में 4 टारगेट्स हैं, दूसरे में 6 टारगेट हैं, तो 10 टारगेट ऑलरेडी हो गए. वी हैव 20 टारगेट्स विद अस. चेंज ओवर एंड राइट स्ट्रैटेजिक गोल सी. एक गूगल सर्च मारोगे ये टेबल मिल जाएगा आपको. एचई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का जो टारगेट ईयर था वो पहले था 2020, फिर पुश करा गया 2025. आज ऑटोमेटिकली लाइमलाइट में आ गया दोबारा से, इसलिए सबसे पहले लिखवा दिया हैव बीन इंटीग्रेटेड विद UN Declaration of the Decade of Ecosystem Restoration 2021-2030. It is roped in with HE biodiversity target. तो अपने आप HE biodiversity target have got rejuvenated and we can expect a question out of it. ठीक है? Strategic goal C. Underline करो, dash डालो, लिखो. It aims at improving status of biodiversity by safeguarding ecosystem diversity, species diversity, and genetic diversity. I hope you are picking up the key terms. Improving the status of biodiversity. Star mark करके लिखो. Includes 3 targets. और देखो जरा 3 टारगेट्स मेरे ख्याल से बड़े एविडेंस हैं, और ये भी पॉइंट प्रूव हो जाता है कि हमारे सिलेबस का टॉपिक जीन पूल सेंटर्स हमने अभी तक क्यों रोका हुआ है. देखे जरा, कंजर्व जीन पूल, प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, प्रोटेक्टेड एरियाज, इन सितु कंजर्वेशन. यस और नो? सो प्रोटेक्ट, बिकॉज आई वांट टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी एंड आई वांट टू सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी at all the level. जेनेटिक डाइवर्सिटी तो जीन पूल सेंटर्स ऑटोमेटिकली राडार पर आएंगे. अब उसका इंफॉर्मेशन थोड़ा अलग जाता है तो हम अलग से बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे. सो जीन पूल, प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन. अब एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? IUCN का रेड बुक पढ़ने का पॉसिबिलिटी मिलेगा विद CITES एंड ट्रैफिक, सो वी हैव जस्ट डिलेड इट देयर. एंड देन ऑल्सो प्रोटेक्टेड एरिया, जिसको हमने काफी इलैबोरेटली डील अप कर लिया. प्रोटेक्टेड एरिया इज इक्वल टू कस्टमाइज्ड POWs. कितने हैं? 5. आर यू गेटिंग इट? आ जाओ. स्ट्रैटेजिक गोल D. अंडरलाइन करो, डैश डालो. That is to enhance the benefit to all from biodiversity and ecosystem services. Benefit to all. Sharing. Star mark करके लिख लो. It has 3 targets. देखो जरा, एक तो इसी कॉलम में दिख रहा है, restore ecosystems. बाकी 2 टारगेट इधर दिखेंगे. Enhance resilience and implement Nagoya Protocol. ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा. Implement Nagoya Protocol. स्ट्रैटेजिक गोल डी को जरा ध्यान से पढ़ना. पूरा का पूरा नागोया प्रोटोकॉल ही तो लग रहा है. यस और नो? मतलब आपको 1 2 3 4 20 लिखने से एग्जामिनर कोई अच्छे मार्क्स देने वाला नहीं है. वो 20 को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो वो समझाएगा कि आपको कितना समझ में आया. रट्टा मारकर ऐसे लिख देने का कोई वैल्यू है नहीं. तो जज करें सारे स्ट्रैटेजिक गोल को. ज्यादा बहुत थियोरेटिकल आंसर बनाना चाहते हो तो जो हम स्टार मार्क करके ऐड करा रहे हैं कि भाई स्ट्रैटेजिक गोल ए में मेरे पास 4 टारगेट हैं, वो लिख दो. स्ट्रैटेजिक गोल बी में मेरे पास 6 टारगेट है, वो नंबर भी लिख दो. लेकिन सारे को लिखना आई डोंट थिंक इट इज एडवाइज. स्ट्रैटेजिक गोल डी वेरी क्लियरली सेज ensuring benefit to all of the all significance, all the resources, ecosystem services that is giving us the benefit to among all the stakeholder. नागोया प्रोटोकॉल का रैटिफिकेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है. एंड नाउ वी आर राइटिंग फाइनल स्ट्रैटेजिक गोल, दैट इज स्ट्रैटेजिक गोल ई. स्ट्रैटेजिक गोल ई, अंडरलाइन, राइट डाउन. Enhance implementation through participatory planning, knowledge management and capacity building. अभी मत देखना बोर्ड की तरफ. Participatory planning, can we easily correlate it with National Strategic Biodiversity Action Plan? Capacity building and knowledge, can I include traditional ecological knowledge?
स्टार मार्क करके लिखो, इंक्लूड्स 4 टारगेट्स। और जरा ध्यान से इस इमेज को देख लो, हो गए 20 टारगेट आपके राडार पर आ गए, पर उसको आपको लिखना चाहिए 5 में ही। देखे जरा ध्यान से, रिवाइज नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, पता है ना, पार्टिसिपेटरी इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड इंप्लीमेंटेशन। दूसरा है रिस्पेक्ट एंड कंजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज। तीसरा है इंप्रूव नॉलेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज की बात कर रहे हो ना। एंड चौथा है मोबिलाइज रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, शुड नॉट क्रिएट फ्रंटियर एथिक्स, it should be sustainable ethics, because we need to understand global population growth is here to stay. 2150 तक global population बढ़ेगा. Global population is going to stabilize not before touching 11 billion mark. And once I take that into account, I cannot halt development in name of environment. I need to develop out the reference of ये आपके HE targets. हम repeat करें. अच्छा, अब मान लो आपसे HE target नहीं पूछा, CBD के बारे में ही पूछ रहा है, तो HE तो लिखोगे. सोच कर देखना. What are the objectives of CBD? Identifying the causes of biodiversity loss and mainstreaming it. क्या बोला हमने अभी अभी? Strategic goal A. Number next. मदद करो. Reducing pressure on biodiversity by ensuring sustainable use. Strategic goal B. Next. Improving status of biodiversity at all the levels. Genetic, species and ecosystem. Number 4. Benefits to all. And this is what is Nagoya Protocol, Manvi. Ensuring accessibility of genetic resources to all the stakeholders, apart from ensuring the sharing of benefit. And then number 5, participation. Participation, that is decentralization, capacity building, knowledge development. So traditional ecological knowledge अपने आप ही आ गया, manageable हो गया. आपको 1, 2, 3, 4, 20 लिखने की कहीं पर भी जरूरत। And HE biodiversity targets are very clearly correlated with United Nations decade on ecosystem restoration. तो अपने आप ही ये थोड़ा सा revive हो गया from its sort of going to the docs. And United Nations decade of ecosystem restoration is supplement or the carried forward version of the preceding decade, that was United Nations decade of ecosystems mobilization, biodiversity protection, जो हमने 2020 तक कंक्लूड करा था from 2011 to 2020. Genetic resources at the gene level. We'll be talking about gene pool centers the next, so you'll be aware of it. पहले बताओ, थोड़ा सा क्लैरिटी आया? जा रहे हैं जरा अपने बोर्ड पर लिस्ट को चेक करने के लिए. Conferences of parties. I don't need to go to 1, 2, 3, 4, 9, 10, but it was in Nagoya that we finalized Nagoya Protocol, but more umbrella. HE biodiversity targets integrated with United Nations decade of ecosystem restoration. How many HE biodiversity targets are there? 5. Called strategic goals A, B, C, D, E. I think we are comfortable. अब आगे लास्ट में, पहले ध्यान से सुन लो, फिर क्विकली लिखवा देते. कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जैसे आपको बताया, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग. इसमें आपको 2 चीजें समझनी है. एलएमओस और जीएमओस तो हमारे राडार पर ऑलरेडी है. समझना क्या है, अब बहुत ध्यान से सुन लो, फिर हम लिखवा दें. सो हाउ इट गोज लाइक, जब हम बार बार रिपीट कर ही जा रहे हैं कि भाई सीबीडी जो है वो अम्ब्रेला है, वो कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट है, तो जब कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट होगा तो उस डायमेंशन को भी तो मिस नहीं करेगा, which has actually evolved. It's not evolving, it has evolved. Use of biotechnology, adding additional threat to already threatened natural biodiversity. इसी चीज को रियलाइज करके 1999 से in the functioning domain of CBD we started extraordinary meeting. So extraordinary meeting was different from this conferences of parties. So the parallel running, let us understand it like this, parallel running extraordinary meetings of CBD oriented towards LMOs and GMOs eventually led to Cartagena Protocol on biosafety. कई बार रिपीट कर चुके हैं क्लास में. It is not denying the use of biotechnology. It is only aiming at ensuring कि कोई भी production, transportation, utilization of LMOs and GMOs must not add new threat to natural biodiversity. And that is the reason the legally binding protocol
centered around LMOs and GMOs establishes two things. AIA stands for Advanced Informed Agreement and BCH stands for Biosafety Clearing House Mechanism. एकदम लेमैन्स पर्सपेक्टिव में इसको समझो, फिर हम लिख लेते हैं. AIA एडवांस इन्फॉर्म्ड अग्रीमेंट, क्या मतलब इसका? मान लो कि हम एक LMO डेवलपर है, हमने डेवलप करा, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बहुत इकोनॉमिक गेन मिल रहा है. आप बड़े इंस्पायर हो रहे हो हमारे गेन को देखकर, एंड यू आर विलिंग टू इंपोर्ट दैट LMO टू योर टेरिटरी. सो इस इक्वेशन में आई हैव बिकम पोटेंशियल एक्सपोर्टर और आप बन गए पोटेंशियल इंपोर्टर. सो AIA established advanced informed agreement established. It's a mandatory clause that I, the potential exporter, provide you, the potential importer, all the pros and cons that goes with the reference of use of this LMO or GMO. क्योंकि हमें बेनिफिट तो बड़े आराम से दिखता है ना, जो उसके साथ चैलेंजेस है वो दिख नहीं रहा. तो मुझे आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ये प्रोज है, ये कॉन्स है, ये मैंडेटरी है, तभी आई कैन एक्सपोर्ट दैट LMO एंड यू हैव अग्रीड टू इट नोइंग ऑल प्रोज एंड कॉन्स. आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क बिकॉज गेन जो मुझे भी ज्यादा मिल सकता है. सो इट एम्स एट इंश्योरिंग कि किसी भी तरीके का कोई रिस्क इवॉल्व नहीं हो इन द ट्रेड ऑफ LMOs एंड GMOs. इट्स अ मैंडेटरी क्लॉज. दूसरा क्लॉज है BCH, बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म. BCH इज वॉलंटरी. क्या मतलब है BCH? एक्सपीरियंस शेयरिंग. आपने मुझसे कुछ नहीं खरीदना, हमने आपको कुछ नहीं बेचना, हम लोग एक जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स में मिल रहे हैं एज पार्टीज टू द कन्वेंशन. आपके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई LMO A वाज वेरी फेवरेबली सक्सेसफुल, उसका कोई भी मेजर इकोसिस्टम पर प्रेशर नहीं है. मेरे पास एक बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि भाई B को तो कभी इस्तेमाल ही मत करना, गेन तो जीरो है, सारा का सारा लॉस है. तो इट इज लाइक वी डिसाइड टू शेयर द एक्सपीरियंस कि A इज फेवरेबल एंड B इज नॉट, ताकि गलतियां रिपीट नहीं हो और जो फेवरेबल LMOs एंड GMOs है उनको हम ज्यादा मोबिलाइज कर सकें. बट इट इज शेयरिंग एक्सपीरियंस, कैन नॉट बी अ मैंडेटरी क्लॉज. It is a voluntary clause that any party to the convention is willing to experience positive, negative, whatsoever experience. So BCH aims at ensuring that all positive experiences are provided as the support for successful utilization of LMOs and GMOs, and all the negative experiences restricts us from repeating the mistake ourselves. किसी एक कंट्री ने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरा फिर क्यों एक्सपेरिमेंट करे, मत करो. So that is what is the logic that goes there. I think you have understood it. Cartagena Protocol legally binding hai, but mind it, it is the outcome of extraordinary meeting, only centered around LMOs and GMOs. I think it makes sense. It cannot be synonymous to CBD. Can it be? CBD bilkul voluntary convention and voluntary protocol. Cartagena Protocol on biosafety is a legally binding, but it cannot be synonymous to CBD for